لاک ڈاؤن میں پھنسے شہریوں کو خود ساختہ مہنگائی نے جکڑ لیا۔ لاہور میں اشیاء ضروریات کے نرخ بڑھ گئے، دالیں بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ کوئٹہ میں چائے کی پتی 60 سے 80 روپے کلو مہنگی، 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے بڑھ گیا۔ پشاور میں بھی 20 کلو آٹے کا تھیلا 250 روپے مہنگا ہو گیا۔ لاک ڈاؤن سے غریبوں کے گھروں میں فاقے۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں شہریوں نے ڈپٹی کمشنر آفس کا گھیراؤ کر لیا۔ پولیس کا راشن کے لیے آنے والے مستحقین پر تشدد، سر پھاڑ دیے۔ مظاہرین کا کہنا ہے ایک تو بچے بھوکے ہیں، اوپر سے پولیس مار رہی ہے۔ شہر شہر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں۔ لاہور میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن کے حصول کے لیے بینکس کے باہر لمبی قطاریں۔ بنوں میں سڑکوں پر اور بینکس کے سامنے عوام کا ہجوم۔ قصور میں شہریوں نے ٹرکس اور لوڈر رکشوں پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ کراچی سے ٹرک میں چھپ کر تانسا آنے والے 33 مسافر دھر لیے گئے۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، قیدیوں کی رہائی پر عمل درآمد روک دیا۔ ہائی کورٹ نے قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹ صوبائی حکومتوں کو قیدیوں کو رہا کرنے کے مزید احکامات دینے سے بھی روک دیا۔ کیس کی سماعت بدھ تک ملتوی۔ انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ۔ ڈالر 96 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 50 پیسے سستا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مندی، 100 انڈیکس میں 140 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت 17 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 5.2% اور برطانوی خام تیل کی قیمت میں 6.6% کمی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سرزنش کے بعد وفاقی حکومت کی پی ایم ڈی سی کو ڈی سیل کرنے کی یقین دہانی۔ رجسٹرار کو اپنے آفس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ حکومت عدالت کی توہین کر رہی ہے، وزراء اور اعلیٰ حکام کو جیل بھیج دیں گے۔ کورونا وائرس پر وزیر اعظم پاکستان آج قوم کو اعتماد ملیں گے۔ عمران خان کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکج کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ ہمارا کچے کا علاقہ ہے اور ہمارے علاقے تک ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی فلاحی ادارے کی جانب سے کوئی امداد کا کوئی پیکیج یا کوئی کسی راشن وغیرہ کی کوئی رسائی نہیں ہوئی۔ حکومت سے التجا ہے کہ ہم پر ہماری امداد کی جائے۔ کورونا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے تجاویز دیں۔ راشن کی کمی ہو تو 92 نیوز کا فون نمبر 0334 1920 278 یا 0334 1920 268 پر اپنے اور علاقے کے نام کے ساتھ ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور پہنچائیں گے آپ کی آواز ارباب اختیار تک۔ مخیر حضرات، مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv وزٹ کریں۔ چودھری شجاعت اور مونا صلاحی کا کورونا سے بچاؤ کا انوکھا طریقہ، کوہنیاں ملاتے ہوئے تصویر منظر عام پر آ گئی۔ عوام کو گھروں پر رہنے کا پیغام بھی دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ رافع اعوان۔ بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی ساتھی اینکر سیدہ اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم اور بڑی خبر کے ساتھ۔ جان لیوا کرونا وائرس نے پاکستان میں اپنے پر مزید پھیلا دیے ہیں۔ قاتل وائرس 24 گھنٹے کے دوران مزید 6 آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں کہ بنوں میں محکمہ صحت کی غفلت اور نااہلی۔ کورونا کا پہلا مریض
3 दिन अपने घर पर रहा। 27 मार्च को मंदियों के 74 साला शख्स को अस्पताल में कोरोना टेस्ट लेकर वापस भेज दिया गया। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद महकमा सेहत और इंतजामिया की दौड़ें लग गई। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज बंगश हमारे साथ हैं। मुमताज, आगाह कीजिएगा, ये क्या वाकया है? बिल्कुल, ये महकमा सेहत की गफलत और नाअहली का बड़ा सबूत सामने आ गया है। कोरोना का मरीज जो कि पॉजिटिव डिक्लेयर किया गया है, लेकिन कुछ अरसे से अब भी अपने घर में मौजूद है और अपने खानदान के साथ मौजूद है। उन्हें न तो इफ्तारी तदबीर के बारे में बताया गया है और न ही उन्हें अपने खानदान से अलग किया गया है। 27 मार्च को इलाका मंडियों के 74 साला सैयद रहमान से खलीफा गुल नवाज अस्पताल में स्वैब के नमूने इकट्ठे किए गए थे और जिसके बाद उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया था। पॉजिटिव आने के बाद इंतजामिया की दौड़ें लग गई और उनको पता चला कि वो अब भी घर में मौजूद है और हालांकि वहाँ पे करंटीना सेंटर्स कायम किए गए हैं और आइसोलेशन वार्ड भी मौजूद है, लेकिन इस शख्स को टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद भी आइसोलेशन वार्ड में भेजा नहीं जा सका और अभी तक अपने खानदान समेत अपने घर में मौजूद है। और महकमा सेहत की जानिब से उनके टेस्ट के पॉजिटिव आने की भी तस्दीक की गई है, लेकिन उनको ताहाल अस्पताल या किसी टेस्ट की तस्दीक की जा चुकी थी, बावजूद इसके उस शख्स को करंटीना नहीं किया गया। मुमताज बंगश आगाह आप कर रहे थे पेशावर से, आपका शुक्रिया। पंजाब में कोरोना वायरस ने अपने पर मजीद फैला दिए हैं। मजीद 41 अफराद जद में आ गए। 7 अमवात, मुतासरीन की मजमूई तादाद 638 हो गई। सूरत हाल से फायदा उठाकर जखीरा अंदोजों ने हथियार तेज कर लिए तो शहरियों ने भी दफा 144 को निशाने पर ले लिया। तबलीग इज्तिमा के तमाम शुरका की स्क्रीनिंग और वायरस से मुतासर अफराद को करंटीना में रखने 10वीं तक तलबा के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स का फैसला भी कर लिया गया। सलेमान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब में कोरोना वायरस ने अपने पर मजीद फैला दिए। मजीद 41 अफराद जद में आ गए। मजमूई तादाद 638 हो गई है। तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 7 है, जबकि 5 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल को जखीरा अंदोजों ने पैसा बनाने का जरिया बना लिया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दाल चना 180 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। दाल मूंग 320, दाल मूंग छिलके वाली 280 रुपए के हिसाब से बेची जा रही है। दाल मसूर 166 और दाल माश 310 रुपए फी किलोग्राम के रेट पर फरोख्त की जा रही है। आईजी पंजाब की हदायत पर 24 घंटे के दौरान जखीरा अंदोजों के खिलाफ 21 मुकदमा दर्ज किए गए। इस दौरान शहरी दफा 144 की धज्जियां भी उड़ाते रहे। लाहौर शहर में 24 घंटे के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 818 मुकदमा दर्ज किए गए। वायरस की टेस्टिंग, लॉकडाउन के बायस तालीमी नुकसान के अजाले और इंतजामी अमूर के जायजे के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में तबलीगी इज्तिमा के तमाम शुरका की स्क्रीनिंग और वायरस से मुतासरा अफराद को करंटीना में रखने का फैसला किया गया। 1ली से 8वीं तक के तुलबा के लिए साइंस और रियाजी, नहम और दहम के तमाम मज़ामीन के ऑनलाइन लेक्चर्स का फैसला किया गया। साथी रिपोर्टर खाबर मुगल के साथ सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों को कैदियों की रिहाई से रोक दिया है। हतमी फैसले तक मातहत अदलिया और सूबाई हुकूमतों के फैसले गैर मुअस्सर करार हैं। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुलजिमान के अलावा सबको रिहा कर दिया। इस अंदाज से जमानतें देना जमानत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कैदियों की रिहाई के मातहत अदलिया और सूबाई हुकूमतों के फैसलों पर अमल दरामद रोक दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोरोना वायरस के बाइस कैदियों की रिहाई के खिलाफ अपील पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि कैदियों की रिहाई से मुतालिक हाई कोर्ट्स मुख्तलिफ फैसले दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन तय करने की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कोरोना वायरस को एक संजीदा मसला करार दिया। रिमार्क्स दिए कि मुल्क को किन हालात का सामना है सब पता है। हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के मुलजमान के अलावा सबको रिहा कर दिया। मंशियात और नए मुकदमात में गिरफ्तार मुलजमान को भी जमानत दे दी। दुनिया में मोहतात तरीकाकार के जरिए लोगों को रिहा किया जा रहा है। देखना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस इख्तियार के तहत कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। सवाल उठाए कि हाई कोर्ट्स अज खुद का इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं। जस्टिस ने मामूली जराइम में मुलविस कैदियों की रिहाई का इंदिया दिया। रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं हो सकता कि आफत में लोग अपने इख्तियारात से बाहर हो जाएं। किसी ने 1 हफ्ते पहले जुर्म किया तो वो भी बाहर आ जाएगा। ऐसी सूरत में शिकायत कुनंदा के जज्बात क्या होंगे? जिनकी 2-3 माह की सजाएं बाकी रहती हैं उनको छोड़ दें। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें खौफजदा नहीं होना बल्कि पुरसुकून रहकर फैसला करना है। हमारा दुश्मन मुश्तरका और हमें मुत्तहिद होकर
وائرس کا مقابلہ کرنا ہے۔ عدالت نے شیخ ضمیر حسین کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت بدھ کو دوبارہ ہوگی۔ آپ کو اس وقت براہ راست لیے چلتے ہیں، مشیر اطلاعات کے پی اجمل وزیر پاکستان ٹیلی ویژن سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پورے ملک نے بڑے وبا اور ٹیررزم اور مختلف چیزوں کا ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کرونا وائرس کا مقابلہ اس صورت میں کرنا ہے، ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے، ہم نے اس کے لیے احتیاطی تدابیر وہ ہم نے کرنا ہے۔ وہ بالکل کچھ ٹائم کے لیے مشکل ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے پورے ملک اور خیبر پختونخوا کے عوام کو اس حوالے سے تحفظ دینا ہے، اور اس حوالے سے خود ساری چیزوں کو ہماری جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے ریلیف ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا پولیس ہے، ہمارے ساتھ مرج ڈسٹرکٹ میں اور ساتھ جو ہمارے 13 اور جو ڈسٹرکٹ سے پشاور میں افواج پاکستان زبردست قسم کا کوارڈینیشن ہے، ان کے ساتھ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر جو بھی SOPs ہے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ پھر آخر میں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے اپنے صوبائی حکومت کی طرف سے ایک ہی اپیل ہے کہ تھوڑا اور ہم نے اس چیز کو وہ برداشت کرنا ہے اپنے عوام کے تحفظ کے لیے، اور جو پیکج کا اعلان ہم نے کیا ہے اس کے اوپر جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ایک تو وہ ہے جو احساس پروگرام کے حوالے سے ہمارے پاس آلریڈی آ چکا ہے، اور جو دوسری آئیڈینٹیفیکیشن ہے چند دنوں میں انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ مشیر اطلاعات KP کے اجمل وزیر گفتگو کر رہے تھے پی ٹی وی کے ساتھ، آپ نے سنا۔ آگے بڑھ کے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی زلفو بخاری کے خلاف کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی تحقیقات کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ آپس میں تقسیم نہ آپ کے اور نہ اس عدالت کے مفاد میں ہے، اس وقت اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ فیاض محمود رپورٹ کریں گے۔ وفاقی حکومت کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا۔ عدالت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے اسباب جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی درخواست مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مفاد عامہ کے تحت وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے خلاف بھی درخواست مسترد کر دی۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اس وقت ملک کو بڑے بحران کا سامنا ہے، اختلافات بھلا کر اکٹھے ہو کر یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے، آپس میں تقسیم نہ آپ اور نہ اس عدالت کے مفاد میں ہے، اس وقت اتفاق اور اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ کرونا وائرس ایمرجنسی میں وفاقی و صوبائی حکومتیں شہریوں کے تحفظ کے لیے بھرپور کام کر رہی ہیں۔ اس صورتحال میں غیر ضروری تنازعات سے بچنے کے لیے مفاد عامہ میں درخواست نہیں سنی جا سکتی، اور عدالت آرٹیکل 199 کے تحت انکوائری کا حکم نہیں دے سکتی۔ درخواست گزار نے کیس کے التوا کی بھی استدعا کی، تاہم تمام درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ فیاض محمود، 92 نیوز، اسلام آباد۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں امدادی راشن لینے کے لیے جمع ہونے والوں پر پولیس نے دھاوا بول دیا۔ پولیس تشدد سے کسی کا سر پھٹا تو کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ متاثرین کا ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاج، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، مدد کرنے کے بجائے پولیس مار رہی ہے۔ ایک طرف کورونا کے وار، ایک طرف لاک ڈاؤن، اس پر بھوکے شہریوں پر پولیس کا لاٹھی چارج۔ پولیس والوں نے مارا ہے۔ کس نے مارا؟ پولیس نے کورنگی میں امدادی راشن لینے کے لیے آنے والوں کی پٹائی کر دی۔ پولیس تشدد سے کسی کا سر پھٹا تو کسی کے ہاتھ پاؤں میں چوٹیں آئیں۔ متاثرین نے کورنگی ڈپٹی کمشنر آفس کا گھیراؤ کیا۔ میرے ساتھ 6 بچوں کے ساتھ بیوہ ہوں میں، اور میرے گھر میں راشن نہیں، میرے بچے بھوکے بیٹھے۔ متاثرین کا کہنا تھا 4 دن سے شناختی کارڈ کی کاپیاں لے رہے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ عوام کے لیے کسی سے کیوں مانگے، جا کے اپنا حق مانگنے پڑ رہے ہم لوگوں کو، دکانیں پڑ رہے ہیں، کاروبار دکھائیں گے تو صحیح۔ مکان کرایہ 10,000 مانگتے، مکان مالک سے باہر نکل جاؤ۔ مظاہرین کا کہنا تھا وہ روز کمانے اور کھانے والے لوگ ہیں، لیکن اب تک انہیں راشن نہیں دیا گیا۔ فیاض یونس، 92 نیوز، کراچی۔
कराची में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है, लेकिन गुंजान आबाद इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। शहरी बिला जरूरत गली मोहल्लों में बैठे दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज फयाज यूनुस से। फयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाडी में मौजूद हैं जहां नौजवान अब क्रिकेट खेलना शुरू हो चुके हैं। कहते हैं कि घरों में हम गर्मी की वजह से परेशान थे, इस वजह से अब अपने घरों के करीब यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। नौजवानों की तादाद अब काफ़ी ज़्यादा है जो घर के करीब क्रिकेट खेल रही है। कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर ये नौजवान लाइल्म है, क्योंकि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो है शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। तमाम अफराद को एक साथ जमा होने पर जो है मना किया जाता है, लेकिन इन नौजवानों में जो है क्रिकेट का जज्बा हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि तमाम तरह इलाका मकीन है और काफ़ी दिनों से हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, लेकिन आज हमारा दिल किया, इसीलिए हम अपने घर के करीब जो है इस छोटे से ग्राउंड में जमा होकर क्रिकेट खेलें। लेकिन अभी तक इन्हें इंतजामिया की जानिब से मना नहीं किया गया। तमाम तर जो नौजवान इनको हम देख रहे हैं कि इन्होंने कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क तो पहने हुए, लेकिन एक साथ जो एक जमा होते हैं तो इनके बड़े इनको मना भी कर रहे हैं और इनको यहाँ से खेलने से पहले भी रोका गया था। जी बहुत शुक्रिया फयाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, कराची में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब बड़े सुपर स्टोर्स पर शहरियों का हुजूम लगा हुआ है और कोई एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं की जा रही। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद नवाब, ये बताइएगा एहतियाती तदाबीर क्यों नहीं इख्तियार की जा रही? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत बार बार आवाम से अपील कर रही है कि कोरोना वायरस की हिफाजत के लिए घरों में रहे, बिला जवाब बाहर ना निकले, लेकिन कराची की आवाम शायद इस पर अमल दरामद बहुत ही कम कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक सुपर स्टोर पे जहाँ बड़ी तादाद में आवाम जो है बिल्कुल करीब करीब खड़ी हुई है। जब अंदर भी जाती है तो कोई भी फासला नहीं रखा जा रहा। बार बार अपील के बाद वजूद सिंध हुकूमत की, लेकिन आवाम उस पर अमल दरामद नहीं कर रही है। बिल्कुल एहतियाती तदाबीर यहाँ पे नहीं है, ना सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रही है, कुछ तो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन अगर दिखा सके कैमरामैन किस तरह रश है यहाँ पर स्टोर पर, खरीदारों का हजूम है, लेकिन कोई भी कोरोना वायरस की हिफाजत के लिए आवाम ने कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की हुए, ना फासला रखा हुआ। ये देखे बिल्कुल फासला नहीं है, रश है, बड़ी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन कोई ये छोटा मासूम बच्चे देखे ये खड़ी हुई है, इसके ऊपर भी इसके वालिदैन जो इसको लेकर आ गए, जबकि हुकूमत सिंध ने वादे तौर पे कहा है कि बच्चों को बुजुर्गों को बाहर ना निकले, लेकिन घरों में रहे, लेकिन इस पर अमल दरामद बहुत कम किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से, फौज की जानिब से बार बार हिदायतें भी दी जा रही है कम निकले, लेकिन कोई भी इस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। रश में बिल्कुल हिफाजत के लिए बिल्कुल फासला नहीं रखा हुआ जो रखा जाता है। महकमा सेहत अपील कर रहा है कि बाहर निकले, रश में ज्यादा दूर दूर खड़े हो, लेकिन इस डिपार्टमेंटल स्टोर पे बिल्कुल करीब करीब खड़े हुए हैं। जी हिदायत तो जारी की हैं, लेकिन अमल ना होने के बराबर है। चांद नवाब अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में लॉकडाउन का आज 7वां रोज है, लेकिन गदागर आज भी सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। कहते हैं इंतजामिया ने झुग्गियां खाली करा ली हैं, अब किधर जाएं? उनका मजीद क्या कहना था ये जानते हैं अपनी नुमाइंदा दुआ मिर्जा से। जी दुआ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में आज लॉकडाउन का 7वां रोज है और लाहौरी आज भी खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन की जगह जगह लोगों का रश है, वहीं गदागरों की भरमार है। इशारों पर इन लोगों का ये कहना है कि अगर ये मांगे ना तो फिर ये क्या करें, इनके पास शाम के खाने के लिए भी रोटी नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में हमें नजर आ रहा है कि सिग्नल्स पर ये खड़े हुए हैं, कोई मास्क इन लोगों ने नहीं पहने हुए, कोई ग्लव्स में नहीं पहने हुए, और बहुत सारे लोगों को मैंने खुद देखा जो खांस भी रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो अगर टेस्ट करवाएं तो वो बहुत दूर की बात है, उनके पास ना तो ग्लव्स हैं ना मास्क है, और उनके पास खाने को रोटी भी नहीं है। झुग्गियों से भी उनको निकाल दिया गया है। एक खातून यहाँ पर अभी बैठी हुई मांग रही थी, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा बताइएगा, आप यहाँ मांग रही है, बीमारी इतनी ज्यादा है, खुदा न खास्ता आपको लग गई या आपसे किसको लगी तो क्या होगा? फिर भुख ना मरांगे, कोई सानू खाण नूं देंदा ना कोई सानू पीण नूं देंदा, झुग्गियां च निकाल दिता, बुरी हालत है, बच्चियां की भुखे रोंदे आ। कितने बच्चे आपके? 5 बेटियां 2 बेटे। कब से मांग रही हैं आप? आपके किसी की बीमारी शुरू हुई है, उद के मांग रहे हैं। कारोबार बंद है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, दुनियादार तो भुखे मरते पे हैं। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं कोई दे रहे हैं, अभी इमदाद कर रहे हैं? कोई मदद कर रहा है, कोई 50 दे रहा, कोई 100 दे रहा है, इवें दे रहे हैं।
جی بالکل، ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ اگر نہ مانگے تو یہ پھر کیا کریں، اور ہر سگنل پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ گدا گروں کی بڑی تعداد ہے، جھگیوں سے ان کو نکال دیا گیا ہے وبا کے سلسلے میں، لیکن یہ لوگ سارے سڑک پر آ چکے ہیں اور ان کو علامات بھی جو ہے بظاہر نظر بھی آ رہی ہیں کہ کوئی چھینک رہا ہے، کوئی کھانس رہا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر کھانس رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی دھجیاں اڑ گئی. تو اس حوالے سے بھی ضلعی انتظامیہ کو سوچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا کیا کرنا ہے. جی صحیح، انتظامیہ کو سوچنا پڑے گا. بہت شکریہ دعا مرزا اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین، فیصل آباد میں بھی مارکیٹس اور تجارتی مراکز بند ہیں، پولیس کی کارروائیاں بھی جاری ہیں اور دوسری جانب دہاڑی دار طبقہ بھی مالی مشکلات سے دوچار ہے. شہر کی مجموعی صورتحال کے بارے میں جانیں گے شہناز محمود سے. جی شہناز، آگاہ کیجیے. جی بالکل، فیصل آباد ڈویژن بھر میں جزوی لاک ڈاؤن کا آج 7واں روز ہے. جنگ، ٹوبا ٹیکسنگ، سرگودا، بکھر، میاں والی تمام کے تمام جو اضلاع ہے وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال جو ہے ایسے ہی جاری ہے. فیصل آباد کی بات کریں تو تمام کے تمام تجارتی اور کاروباری مراکز بند ہیں، دکانیں بند ہیں، دفاتر بند ہیں اور اس کے علاوہ لوکل ٹرانسپورٹ پہ بھی پابندی عائد ہے، جس کی وجہ سے صرف لوگ جو ہے بہت حد تک ہمیں گھروں میں ہی محدود نظر آ رہے ہیں. پولیس والے ایکشن میں نظر آ رہے ہیں کہ دفعہ 144 کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں یا غیر ضروری طور پر عوام جو ہے گھروں سے باہر نہ نکلے. دوسری طور پر سٹی ٹریفک پولیس کافی متحرک نظر آئی ہے. ان 6 دنوں میں 5000 سے زائد گاڑیاں بند کر کے تقریباً 27 لاکھ کے جرمانے عائد کیے ہیں. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے شہر کی دھلائی مہم بھی جاری ہے. وقتاً فوقتاً جو ہے اعلانات کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ بچوں کو بھی باہر پارکوں میں یا گلیوں میں کھیلنے کے لیے باہر نہ نکالے. اور دوسری طرف عوام سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر اشیاء خور و نوش کے لیے گھروں سے باہر نکلنا ہے تو دکانوں اور ریڑھیوں کے باہر جو سرکل ڈرا کیے گئے ہیں 6-6 فٹ کے فاصلے پر وہاں کھڑے ہونا ہے. ہجوم ہرگز نہیں لگانا ہے. یہاں کے دہاڑی دار مزدوروں کو جن کی دہاڑی نہیں لگ رہی ان تک راشن نہیں پہنچ پا رہا. تو عوام سے اپیل ہے کہ ایسے گھر اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں فاقے ہو رہے ہیں تو ان تک جو ہے راشن پہنچائیں، گھروں میں رہیں، اپنا خیال رکھیں اپنوں کے لیے. جی بندہ مزدور کے اوقات تو پہلے ہی بہت تلخ ہیں. کرونا وائرس کے باعث ان دنوں دہاڑی بھی داؤ پر لگ گئی ہے. محنت کشوں کو کام ملنا بھی مشکل ہو چکا ہے. راولپنڈی سے مریم ملک کی یہ رپورٹ دیکھیے. وائرس نے دہاڑی دار مزدوروں کو روزگار سے محروم کر دیا. روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے سڑک کنارے بیلچے اور کھدال رکھے روزگار کے متلاشی حسرت کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. یہ ہے راولپنڈی کا علاقہ کمرشل مارکیٹ، جہاں صبح سویرے ہی مختلف علاقوں سے مزدور پہنچ جاتے ہیں اور شام ڈھلنے تک کام لینے والے کی راہ تکتے مایوس لوٹ جاتے ہیں. مزدوروں کا کہنا ہے کہ گھروں میں بیٹھے بیوی بچے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں. پہلے ہی گزارا مشکل سے ہوتا تھا، اب نوبت فاقوں تک آ گئی. عمران خان روز کہتے ٹی وی پہ جی میں یہ بانٹ رہا ہوں، جی وہ راشن ہم دے رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں عمران خان، کوئی راشن ماشن نہیں دے رہے، بالکل جھوٹ ہے. ہمارے پاس یہی مزدوری ہے جی 800 ملتی ہے ہم لوگوں کو، جو جا کے گزارا کرتے ہیں. کوئی امداد نہیں، کوئی چیز نہیں. ہمارے 5-7 دہاڑے ہو گئے، ساری پریشانی ہے. کام کا مسئلہ بہت کسا ہے، ہمیں تھوڑی مجبوری ہے، بال بچے خرچہ بہت مشکل ہے. دنیا ابھی درد مندوں سے خالی نہیں ہوئی. کبھی کبھار مخیر حضرات ان مزدوروں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. کوئی نقدی تو کوئی کھانے پینے کی شکل میں مدد کر جاتے ہیں. کیمرامین انیس خواجہ کے ساتھ مریم ملک، 92 نیوز، راولپنڈی. حجرہ شاہ مقیم میں دفعہ 144 کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے. حجرہ شاہ مقیم میں آٹا نایاب ہو گیا. شہری در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں. شہری لمبی قطاروں میں یوٹیلیٹی سٹور سے آٹا خریدنے لگے ہیں. مزید جانتے ہیں چودھری ظفر اقبال سے. ظفر اقبال، بتائے گا دفعہ 144 کے ہونے کے باوجود عمل کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ جی بالکل، حجرہ شاہ مقیم میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا. شہری در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. درجنوں کی تعداد میں شہری لمبی لائنیں لگا کر آٹا وصول کرنے لگے. آٹا من پسند لوگوں کو دیا جانے لگا. جو غریب اور دیہڑی دار اور متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو آٹا نہیں دیا جا رہا. لوگ کورونا کی وبا کو بھول گئے اور آٹے کے پیچھے پڑ گئے. لمبی لائنیں لگا کر لوگ آٹا لینے چلے گئے. دفعہ 144 کی جو وہ دھجیاں اڑائی جانے لگی، انتظامیہ نے بھی اس پر چپ سادھ رکھی ہے. جی صحیح، آٹا بھی من پسند لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. چودھری ظفر اقبال، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.
कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी जंग। वजारत खारजा में अहम इजलास। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास की सदारत की। इजलास में बैरून मुमालिक महसूर पाकिस्तानियों की मरहला वार वतन वापसी का जायजा लिया गया। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना वायरस के फैलाव, तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश मुश्किलात के ऊपर बातचीत भी की है। कोरोना वायरस के खिलाफ कौमी जंग, वजारत खारजा में अहम इजलास। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास की सदारत की। इजलास में बैरून मुमालिक महसूर पाकिस्तानियों की मरहला वार वतन वापसी का जायजा लिया गया है, जबकि डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना वायरस के फैलाव, तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश मुश्किलात पर ब्रीफिंग भी दी है। मजीद बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, बताइएगा ब्रीफिंग क्या दी गई? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के खिलाफ जो कौमी जंग है इसमें वजारत खारजा का अहम किरदार है। इस सिलसिले में अहम इजलास जो है वो वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में बैरून मुमालिक महसूर पाकिस्तानियों की मरहलावार वतन वापसी का जायजा लिया गया। इस इजलास में मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना वायरस के फैलाव, तहफ़्फ़ुज़ और दरपेश मुश्किलात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIH मेजर जनरल आमिर इकराम ने कोरोना टेस्ट के हवाले से इस्तेदाद कार और तैयारियों से आगाह किया। इजलास में 4 अप्रैल को बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मुमकिना बहाली के बाद की सूरत हाल जो है उस पर तफसीली मशावरत की गई और इजलास की मुतफ़िका तजावीज़ को कौमी ताउन कमेटी की इजलास में जो है वो मंजूरी के लिए पेश किए जाने का फैसला किया गया। जी ठीक, इजलास में अहम उमूर पर बात की गई। फैसल रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मलेशिया में बेरहम कोरोना वायरस के अफसोसनाक वार जारी हैं और आज भी मजीद 7 कीमती जानें इसका शिकार हुई, जिससे कुल अमवात 34 हो चुकी हैं। मलेशिया के डायरेक्टर जनरल हेल्थ दातू डॉक्टर नूर हशाम अब्दुल्ला के मुताबिक आज 150 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इसी तरह मलेशिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2470 तक पहुँच चुकी है, जो कि जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा है। मजीद तफसीलात जावेदुर रहमान की इस रिपोर्ट में। मरीजों की तादाद 388 तक पहुँच गई है। 14 अप्रैल तक जारी रहने वाले लॉकडाउन का मलेशिया में आज 11वां रोज़ है। बाजार, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, तालीमी इदारे, इबादत गाहें, मसाजिद और तमाम होटल्स बंद हैं। लोग अपने घरों में ही मौजूद हैं। ज़रूरी अशिया खुरोनोश या दीगर इंतहाई एमरजेंसी की सूरत में लोगों को नकलो हरकत की इजाज़त है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जहाँ लॉकडाउन पर अमल दरामद की निगरानी कर रहे हैं, वहीं लोगों को बड़े मुनासिब अंदाज में इस पर अमल दरामद करने की तलकीन भी कर रहे हैं। This virus, corona, COVID-19 is really testing us, and the government has taking a lot of initiative to help Malaysian people. And my message is just to stay at home and be safe and follow all the orders that has been announced by the government. That everybody just stay at home, follow the government's rules and regulation. Whatever happening coming, Malaysia government try to helping us for our everything. So we hope if we follow government's rules and regulation, inshallah this coronavirus will be gone very soon, and Allah can protect us. उधर मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने अपने ट्विटर पैगाम के जरिए हुकूमत को लॉकडाउन की मुद्दत में 28 अप्रैल तक तौसीह करने की तजवीज़ पेश कर दी है। ट्वीट के आदाद और शुमार के मुताबिक मलेशिया में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद 12 अप्रैल तक अपने अरूज तक पहुँच जाएगी और ये तादाद 5070 के करीब भी हो सकती है। इंस्टीट्यूट की तहकीक के मुताबिक लॉकडाउन की मुद्दत 28 अप्रैल 2020 तक बढ़ाने से कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा 0 हो जाएगा। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मलेशियन क़यादत, अवाम, पैरामेडिकल स्टाफ, कानून नाफिज करने वाले इदारे, फ्रंट लाइन्स हीरो और अवाम इंतहाई संजीदगी से अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। ये फ़ज़ा इसी तरह कायम रही तो वो दिन दूर रही जब मलेशिया से कोरोना वायरस का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कोलालमपुर, मलेशिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासिरा लोगों की तादाद 6 हो चुकी है। इस वायरस की संगीनी को समझते हुए एहतियाती तदाबीर के साथ इंतजामिया से ताउन करना लाजिम है। पुलिस अफसरान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खड़ी शरीफ में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ UK तनवीर बुखारी से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, तो मैं इस वाले से सोशल मीडिया के ज़रिए भी और दीगर मीडिया के ज़रिए भी इसके जो नुकसानात सामने आ चुके हैं, मैं यही कहूँगा कि आवाम को कि वो अपना फ़ायदा सोचें। ये हमारा ही फ़ायदा है। ये गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाए हैं तो आवाम के लिए उठाए हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, और मैं उनसे यही कहूँगा कि इस सिलसिले में जो हिफाजती इक़दाम बताए गए हैं उन पर अमल करें, मास्क पहनें
दस्ताने पहने। हमने पुलिस और आर्मी का मुश्तरका हमने यहाँ पर नाका लगाया हुआ ताकि जो है ना हमारे सिक्योरिटी का मसला नहीं है, यहाँ पर हम सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं लोगों को ताकि जो कोरोना वायरस है जो वबा है जो फैल रही है ताकि अवाम जो है ना उनको आगाह किया जाए कि आप घरों में रहें, ठीक है, बिला वजह घरों से ना निकलें। Obviously we've had this huge concern about the coronavirus like everywhere in the world. Our area is also affected. I came over a couple of weeks ago when it wasn't too bad and the travel arrangements were fine at that point, and we managed to give out some information leaflets regarding coronavirus. Obviously this is a huge concern. People are not educated here to realize that there needs to be the social distancing, but also the fact that we need to be cleaning our hands, making sure that we are at least 2 meters apart from each other. रूस में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत मॉस्को में 10 रोज़ा लॉकडाउन के साथ साथ जुज़वी कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया। तफसीलात शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। रूस में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए हुकूमत मुतहरक। दारुल हुकूमत मॉस्को में लॉकडाउन के साथ साथ जुज़वी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुलिस एहलकार शहर की सड़कों पर गश्त करते हुए लॉकडाउन और कर्फ्यू का ऐलान करते नजर आए। गवर्नर मॉस्को डिवीजन आंद्रे वराबियो के मुताबिक लॉकडाउन और कर्फ्यू 10 रोज तक जारी रहेगा। इस दौरान मेडिकल स्टोर और अशिया खुर्दोनोश की दुकानों पर जाने की इजाजत होगी और वो भी घर का सिर्फ एक फर्द जा सकेगा। गवर्नर मॉस्को के मुताबिक कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नाफिज रहेगा। अगर किसी शख्स ने हंगामी तौर पर कहीं जाना है तो इसके लिए इसे इजाजतनामा दिखाना होगा। साथ साथ रूसी हुकूमत की जानिब से रूस के तमाम बॉर्डर्स के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है। रूस में अब तक कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1534 हो गई है, जबकि इससे मुतासरा 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र अहम इक़दाम। कोरोना की अलामात का हामिल कोई भी शख्स अब हवाई जहाज़ या रेलगाड़ी पर अंदरूनी मुल्क सफ़र नहीं कर पाएगा। तफसीलात अदील डैनियल की इस रिपोर्ट में। आयद करदा पाबंदी के मुताबिक अगर किसी शख्स को बुखार, खांसी या सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो, वो रेलगाड़ी और जहाज में सफर नहीं कर सकेगा। एयरलाइन और रेल ऑपरेटर्स पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कोरोना की अलामात के हामिल अफराद को ट्रेन या हवाई जहाज में सवार न होने दें। कनाडियन वज़ीर आज़म ने एक बार फिर शहरियों से अपने घरों तक महदूद रहने की अपील की। तुर्की में फंसे पाकिस्तानियों को सिफारत खाने पाकिस्तान की जानिब से इस्तांबुल के 3 स्टार होटल में ठहराया गया और उनकी पसंद के खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। पाकिस्तान काउंसलेट जनरल इस्तांबुल बिलाल खान पाशा का कहना है कि वो पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का बंदोबस्त करने के लिए हर सतह पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। मजीद तफसीलात आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कौंसलेट जनरल इस्तांबुल बिलाल खान पाशा ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि हम पूरी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं और वतन वापसी का बंदोबस्त करने के लिए हर सतह पर अपनी कोशिश कर रहे हैं। उनका मजीद कहना है कि हम उन लोगों तक भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें माली मदद की ज़रूरत है और हम जल्द ही इस तरीक़ाकार का ऐलान करेंगे कि हम उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। पाकिस्तानी के साथ मुसलसल राब्ते में है और एक ग्रुप जो एयरपोर्ट पर फंस गया था उसको हमने बाहिफाजत वहाँ से रेस्क्यू करके और यहाँ की जो क्वारंटीन फैसिलिटी है वहाँ पहुँचाया। इसके अलावा तकरीबन 100 से ऊपर ऐसे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आए थे और मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए आए थे, तो उनको हमने यहाँ पर सेफ़ तरीके से यहाँ पर चूँकि 90% होटल बंद हो चुके हैं तो हमने उनको होटल्स अरेंज करके यहाँ उनको बाहिफाजत उनकी जो प्रोविज़न ऑफ शेल्टर है वो अरेंज किया है। इसके अलावा जो सबसे हमारी तरजीह है वो है फूड और मेडिसिन। ये इंतहाई अहम बुनियादी ज़रूरियात है जो हमारे इंस्टेंट पाकिस्तानीज़ को फेस हो रही है। और जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है कि 90% यहाँ होटल बंद हो चुके हैं,
एक तरह से वॉलंटरी यहाँ लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। बिलाल खान पाशा ने कहा कि जहां तक पाकिस्तानी शहरियों के पाकिस्तान हुकूमत से एहतजाज करने के हक़ का ताल्लुक है तो आपका ये बुनियादी हक़ है, लेकिन कौंसल खाने के नुमाइंदे की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि आपको ये बताएं कि तुर्क पुलिस और हुक्काम कोरोना वायरस की वजह से सख्त इक़दाम कर रहे हैं और मुस्तकिल तौर पर न सिर्फ गैर मुल्कियों बल्कि मकामी अफराद के लिए भी शनाख्ती मालूमात चेक करना। उन पाकिस्तानियों को तरजीह दें जो जिनके पास ऐसे वसाइल और ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो होटल का स्टे अफोर्ड कर सकें। कौंसलेट ने भरपूर कोशिश के बाद 90% होटल बंद होने के बावजूद हमने एक स्पेशल होटल इनके लिए अरेंज किया है इंतहाई मुनासिब कीमत पे, और जिसमें कौंसलेट ने न सिर्फ उनके क़याम को यकीनी बनाया है बल्कि जो जितने भी डिज़र्विंग स्टूडेंट पाकिस्तानीज़ हैं हम उनका खर्चा भी खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों से अपील की कि मुआशी दूरी को यकीनी बनाएं और तुर्क वजारत सेहत की दी गई एहतियातों पर अमल करें और इस सिलसिले में पुलिस से भी ताउन करें। इस्तांबुल के मकामी होटल में ठहराए गए उन 45 पाकिस्तानियों का इंतजाम पाकिस्तान कौंसलेट जनरल संभाल रहा है। उन्हें तुर्क चिकन चरगे जैसी फरमाइशी लजीज खानों से तवाज़ो की जा रही है और मिनरल वाटर भी फराहम किया जा रहा है ताकि उन्हें मुश्किल घड़ी में उनकी परेशानियों को कम किया जा सके। फ्रांस में कोरोना वायरस के केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। 20 के लगभग पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, जबकि 3 पाकिस्तानी अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सफ़ीर पाकिस्तान मोइनुल हक ने फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुजारिश की है कि कोरोना वायरस से मुतल्लिक फ्रांस हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। सफ़ीर पाकिस्तान ने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। आज तमाम दुनिया कोरोना वायरस जैसे मूजी वबा की लपेट में है। ये पूरी इंसानियत के लिए एक बड़ी मुश्किल घड़ी है। कोई मुल्क चाहे वो सुपर पावर हो, तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता हो, कोई शख्स कोई इंसान अमीर हो या गरीब हो, शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ हो या एक मजदूर हो, औरत हो या मर्द हो, तब तमाम के तमाम इस वबा का शिकार हो चुके हैं। फ्रांस में भी ये कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और अब तक की इत्तला के मुताबिक तकरीबन 37,000 अफराद इस वायरस से बीमार हैं। आने वाले दिनों में भी ये तवक्को है कि ये कुछ और फैलेगा, इसलिए फ्रांस की हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जो लॉकडाउन है उसे 2 हफ्ते की मुद्दत उसमें मज़ीद की है और 15 अप्रैल तक इसको बढ़ा दिया गया है। मेरी आप सबसे ये इल्तिजा है कि जो फ्रांसीसी हुकूमत के जो हदायत हैं और जो सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं उन पे खुदारा पूरी तरह अमल करें, अपने अपने घरों में रहें। यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने जाने वालों को भी बचा सकते हैं और इस वबा का जो एक तेज़ फैलाव है उसको रोक सकते हैं। मेरे और मेरे तमाम साथियों के लिए आप सबकी सेहत, आप सबकी सलामती अवलीन है। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपके जितने रूटीन के काम हैं उनको प्लीज़ उनके लिए अपनी ज़िंदगियों को और दूसरों की ज़िंदगियों को रिस्क में ना डालिए और एम्बेसी ना आइए। हमने भी फ्रांसीसी हुकूमत की जो हदायत हैं उन पे अमल करते हुए हमने अपना कौंसलर सेक्शन वक्ती तौर पे बंद किया हुआ है, लेकिन आपकी कोई भी कोई अहम काम हो या कोई इमरजेंसी हो, हम उसके लिए हर वक्त मौजूद हैं, 24 घंटे मौजूद हैं। हमारी हेल्प लाइन्स ओपन हैं, उनके जो नंबर हैं हमारे वेबसाइट पे दिए गए हैं, आप किसी वक्त भी हमें वो कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि मैं और मेरे तमाम साथी जो कम्युनिटी के जो एसोसिएशंस हैं, तंजीमें हैं, उनके उहदेदारान से मुकम्मल राब्ते में हैं। हम हालात का भी जायज़ा ले रहे हैं और जो कम्युनिटी के अगर कुछ मसाइल हैं उन पे भी हमारी बातचीत रहती है। अपनों का, अपने प्यारों का, अपने साथियों का ख्याल रखिए और अल्लाह से मैं ये दुआ गो हूँ कि वो आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कोरोना
وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، ایسے میں کھیلوں کے میدان بھی ویران ہونے لگے ہیں۔ نامور کرکٹرز نے بھی اپنے پیغامات میں احتیاط کے ساتھ مشکل کی گھڑی میں غربا کی مدد کے لیے آواز بلند کر دی ہے۔ خضر اعظم کی یہ رپورٹ۔ بہتر علاج، نامور کھلاڑی بھی میدان میں آ گئے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور ٹیسٹ کرکٹر احمد شہزاد کہتے ہیں وقت ہے غریبوں کی مدد کا، سب ایک قوم بن کر دکھائیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، پلیز ان لوگوں کا خیال رکھیں، بیکاز ان لوگوں کو ہم لوگوں کی اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو آئیں، اپنے مزید دل کھولیں اور ایک اچھی کاز کے لیے ڈونیٹ کریں۔ ڈونیٹ کرو نا، آپ سب کے لیے دعا۔ پاکستان زندہ باد۔ بھارتی کرکٹر ہربھجن سنگھ نے بوم بوم کی غریبوں کی مدد کرنے کی کاوشوں کو سراہا۔ شاہین شاہ نے بھی دیگر لوگوں کو آفریدی کی طرح کام کرنے کا پیغام دیا۔ گاؤں میں شاہد افریدی نے اتنا خوبصورت ہاسپٹل بنایا ہے لوگوں کے لیے، اور وہ کافی ہیلپ کر رہے لوگوں کے ساتھ۔ میرے خیال سے ایک شاہد بھائی نہیں ہے، باقی سب کو یہ اقدام اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم نے ایک قوم بن کے کھڑے ہونا ہے کورونا وائرس کے خلاف، تو ہم سب نے کام کرنا ہوگا اور پاکستان کو بچانا ہوگا۔ دوسری جانب وومن کرکٹر سدرا امین نے خود کو گھر تک محدود کرتے ہوئے ٹریننگ گھر میں ہی شروع کر دی۔ حال ہی میں لندن سے پاکستان پہنچنے والی ہاکی کھلاڑی افشا نورین 14 روزہ قرنطینہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے بھائی ٹیسٹ کرکٹر احسان عادل کے ساتھ ہاکی کھیلنے میں مصروف دکھائی دیں۔ سابق کپتان شاہد خان آفریدی اور ٹینس اسٹار احسام الحق نے حکومت سے اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر کے کھیلوں کے کھلاڑی اپنے پیغامات سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں۔ خضر اعظم، 92 نیوز، کراچی۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن میں شامل اہم خبریں آپ جان چکے ہیں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔